Okay, today we are going to discuss with the concept called the complexity of an algorithm. So what is an algorithm? First of all, we will see that an algorithm is a well-defined step-by-step solution for any defined problem. Algorithm is not a programming language specific prescription. तो अब जब हम लोग description की बात कर रहे हैं किसी भी problem की, तो we are not dependent upon the language जिसमें उसको implement करना है. We are going to write a solution which is programming language independent. हमें step by step explain करना है what we are supposed to do. For example, if we are supposed to write an algorithm for checking if the given number is even or odd, so what are we going to do? First of all, we need a number जिसको हमने check करना है कि whether that given number is even or not. So what is going to be the first step? Our first step will be input number. Okay, so I am not saying कि हम लोग C में या Java में या Python में इस number को कैसे input करेंगे. But my first step is simply saying that input the number. Okay. What is my step number 2? My step number 2 will be a step towards कि क्या computation करूं जिससे मुझे पता चले कि whether a given number is even or odd. उसके लिए मुझे उस number का remainder compute करना पड़ेगा. तो let us do that. तो हम लोग लिख सकते हैं कि compute the remainder of the number and save it in let's say a variable remainder. So remainder is equal to the remainder of variable or your number. तो ये दो steps हमारे हो गए. Now how to check whether a given number is even or odd after our computation has been done? For that we need to check the value of the variable remainder. If the value is 0, then display that the number is even, otherwise the number is odd, and that is the end of your algorithm. So in this algorithm we are just specifying what is the step-by-step solution to the given problem in hand, and we are not focusing on any programming language. So the second thing that we are going to discuss is what is the time complexity of an algorithm. So today, as it is a tutorial session, and for the first time we are going to try so that I can speak to you people. If anyone wants to describe what is the time complexity of an algorithm, you are most welcome. Any student who would like to describe what is the time complexity of an algorithm? So I am waiting if anybody would like to answer what is the time complexity of an algorithm. It is a time taken by the algorithm to process. Yes. कितने टाइम में process होता है algorithm? Umesh, if you want to answer this one, what is the time complexity of an algorithm? Time Yes, Umesh, are you there? What is the time complexity of an algorithm? So one by one, we are going to try again. I am still waiting. If anyone of you would like to repeat what is the time complexity of an algorithm. सर जो कंप्यूटर टाइम लेता है किसी भी एल्गोरिथम को रन करने के लिए. Okay, so we have one answer from Arshpreet. She's saying that the amount of time a computer takes to run an algorithm is called the time complexity of an algorithm. So anyone else would like to give it a try? What is the time complexity of an algorithm? जितने स्टेप्स लेता है
जैसे हमने कोड लिखा है कितने स्टेप्स लेके वो एग्जीक्यूट होगा, वो टाइम हम नोट करते हैं। ओके, कोड कितने स्टेप लेता है, कोड कितने स्टेप लेता है और कोड कितना टाइम लेता है? एनीवन एल्स? कोई और ट्राई करना चाहेगा? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम? डोंट बी शाई, यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं। Amount of time taken by program to run. Okay, so we have Harpreet Kaur, the time taken to run a program. So now let's discuss what is the time complexity of an algorithm. I think in the very beginning of the lecture, the thing that I told you and I asked you to clearly focus on that, आप लोगों ने शायद उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया। सबसे पहली चीज आपको ये बताई थी दैट एल्गोरिदम का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, एंड बेसिकली इट इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। तो इस कारण से हाउ मच टाइम एक कंप्यूटर लेता है इसको सॉल्व करने के लिए डज नॉट अराइज, बिकॉज एन एल्गोरिदम कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। हमें अगर किसी एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन चेक करना है तो वो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ अ प्रोग्राम हो सकता है। हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे एंड देन वी विल सी कि उस प्रोग्राम को कितना टाइम लगता है, बट फिर भी एक प्रोग्राम की भी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है तो वो हम लोग कभी भी चेक नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। उसका रीजन क्या है? इफ आई एम checking the complexity of a program on a low end processor, then obviously the time taken will be more, and if I run that same thing on a very high end system, then the time taken will be less. but इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रोग्राम के अंदर कोई भी चेंज किया है। so that is absolutely clear कि हम लोग जब एक एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करेंगे तो the time taken by it to run by converting it into a program is not considerable. In fact, ये जो आप रनिंग टाइम की बात कर रहे हैं कि how much time it takes to run a program, ये उल्टा है। ये प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये प्रोसेसर की कंप्यूटेबिलिटी स्पीड चेक करते हैं हम लोग। अगर हम लोग उनको एक प्रोग्राम देते हैं एंड वी आस्क कि हाउ मच टाइम डज इट टेक, तो हम उसी सेम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर रन करके उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि एक प्रोसेसर कितना टाइम लेता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब नाउ वी कम टू द कंफ्यूजन, देन व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम? सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ टाइम इज द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन और द नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म। वो कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करता है या वो कितने स्टेप्स लेता है। अब इन दोनों में से भी इंपॉर्टेंट कौन सा है? द नंबर ऑफ ऑपरेशंस इट परफॉर्म्स। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इफ आई से a is equals to b plus c and c is equal to let's say a is equals to b plus c and c is equals to b multiplied by a. This is two-step solution to something that I want to compute. Similarly, I have done something like this. Here, this is one-step solution. This is two-step solution. But consider that what is the cost of an operation? Multiply is very costly operation as compared to the plus. अगर आप ऊपर वाले दो स्टेप्स में देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक मल्टीप्लाई आ रहा है, लेकिन अगर आप नीचे वाले में देखेंगे तो चाहे नंबर ऑफ स्टेप्स 1 है लेकिन इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस में मल्टीप्लाई 2 बार आ रहा है। तो आई विल कंसीडर कि ये जो नीचे वाला एल्गोरिदम है इट इज मोर कॉस्टली और इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक मोर टाइम देन द फर्स्ट एल्गोरिदम जो 2 स्टेप्स में है। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिदम की कैन बी मेजर्ड in terms of number of computational steps
या तो हम लोग उसको स्टेप्स के में देख सकते हैं या नंबर और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। हम हर ऑपरेशन की कॉस्ट डिफाइन कर देंगे, जैसे असाइनमेंट है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है। तो जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं हम लोग उनकी कॉस्ट डिफाइन कर देंगे। फिर हमारी एल्गोरिथम में हाउ मेनी टाइम्स दीज ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड, हम उसकी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। सो दैट इज इट। टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखने वाले नहीं है। तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना टाइम लेगी? या तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वन। वन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। मींस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टू व्हाट? कांस्टेंट टू n। और n क्या है? n इज द साइज ऑफ इनपुट। अगर आप एक एरे को सॉर्ट करना चाहते हैं तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको आप सॉर्ट करना चाहते हैं? लेट्स से n इज इक्वल्स टू 10। अब I increase the value of n is equals to 10 to let's say 10,000। तो पहले n की वैल्यू कितनी थी? 10। अब n की वैल्यू कितनी हो गई है? 10,000। तो n कितना बढ़ गया है? n के बढ़ने से मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ रही है? How much is the increase in the complexity of my algorithm or the number of steps it take is called the time complexity of an algorithm। तो सबसे बढ़िया कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आप n को जितना मर्जी बढ़ा दीजिए लेकिन मेरी कॉम्प्लेक्सिटी या नंबर ऑफ स्टेप्स विल नेवर इंक्रीज, विच इज हाईली अनलाइकली। ऐसा होता नहीं। फाइंडिंग अ कांस्टेंट time complexity for any problem is literally or very close to impossible to achieve। और इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जैसे लीनियर, which means n। यानी मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? जितनी n की वैल्यू। 1 can be log of n, which is very good। If we can find a solution to any problem in terms of log of n time, तो बहुत बढ़िया है। इसका एक एग्जांपल क्या है, शायद आपने किया हो, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च टेक्स log n टाइम। इसके अलावा क्या हो सकता है? n स्क्वायर, n क्यूब या 2 पावर n। ओके, सो 2 n स्क्वायर और 2 पावर n में ज्यादा कौन है, ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? 2 पावर n, बिकॉज इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर science takes exponential time, that is 2 power n। ठीक है, तो okay, so with this we come to the end of first part of our topic, that is what is an algorithm and what is time complexity। So what is time complexity? Please remember, it is not the amount of time it takes but the number of steps or the number of operations or the cost of operations it performs। The second thing is space complexity। What is space complexity? Space complexity is the amount of space that will be required। आप कितने variables use कर रहे हैं, आप functions जो use कर रहे हैं वो कितनी space लेंगे, so that is the total space that will be required to solve the प्रॉब्लम गिवन अ एल्गोरिथम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को 3 मेथड्स में मेजर किया जाता है, वर्स्ट, बेस्ट एंड एवरेज। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड द सर्च प्रॉब्लम। अब आप कोई भी मेथोडोलॉजी लगा सकते हैं, ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ और एक एक डेटा सेल में चेक करो कि ये वैल्यू मैच करती है या नहीं करती है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप एक बहुत बढ़िया मेथोडोलॉजी लगाइए, मिड से शुरू कर दीजिए, लेफ्ट में सारे छोटे, राइट में सारे बड़े, लॉग एन कर दीजिए, या आप हैश लगा दीजिए। कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को कंप्यूट करने से हमें एड्रेस मिल जाता है। तो अब इसमें 3 केसेस हो सकते हैं, एक वर्स्ट, एक बेस्ट और एक एवरेज। मैं लीनियर सर्च ब्रूट फोर्स के हिसाब से चलता हूँ। लीनियर सर्च क्या कहती है
कि अगर आपके पास 200 रूम्स हैं और मुझे ये पता करना है कि ये स्टूडेंट कौन से रूम में है, तो मैं पहले रूम से स्टार्ट हो जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि पहले रूम में ये स्टूडेंट बैठा है, अगर बैठा है तो वेरी गुड, नहीं बैठा है तो दूसरे रूम में चले जाओ, फिर तीसरे रूम में चले जाओ, कुछ इस तरह से करते हैं। तो इसका बेस्ट केस क्या हो सकता है? बेस्ट केस ये है कि जिस स्टूडेंट को मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे फर्स्ट रूम में मिल गया। तो इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि यही स्टूडेंट मुझे उसके लास्ट रूम में जाके मिला। तो एवरेज क्या हो सकता है? एवरेज इज एनीथिंग इन बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। जनरली वी कॉल इट द बेस्ट प्लस वर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। अब हमें इन तीनों में से किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए? हमें इन तीनों में से जो ज्यादा फोकस होता है वो हमारा वर्स्ट के ऊपर होता है। वर्स्ट का मतलब ये है कि फॉर एनी गिवन इनपुट ऑफ n साइज, व्हाट इज द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। मैं इस चीज से खुश नहीं हो सकता हूं कि हाँ जी मेरी एल्गोरिथम की बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, लेकिन मुझे तैयारी करनी है कि व्हाट इज द वर्स्ट। अगर मेरी एल्गोरिथम बहुत ज्यादा टाइम लेगी तो सबसे ज्यादा टाइम कितना ले सकती है? दैट इज कॉल्ड द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माय एल्गोरिथम। जैसा मैंने आपको बताया, लीनियर में हमें 200 रूम्स दिए गए हैं जिसमें हमें स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है। तो इस एल्गोरिथम के लिए वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि वो स्टूडेंट मुझे लास्ट रूम में जाकर मिला। हो सकता है कि मेरे पास 200 बार मौका मिला हो मुझे किसी स्टूडेंट को सर्च करने का, लेकिन वो हमेशा मुझे लास्ट रूम से पहले ही मिल जाता है। लेकिन दैट कैन नॉट बी अवर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एल्गोरिथम द वर्स्ट इज दैट मे बी हमें वो स्टूडेंट लास्ट रूम के अंदर मिलेगा। इज इट क्लियर? अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? बेस्ट को कैसे डिफाइन करूं? मैं बेस्ट को डिफाइन करूंगा कि वो मुझे फर्स्ट रूम में ही मिल गया, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 1। 1 मींस फर्स्ट रूम। एंड वर्स्ट मतलब अगर मेरे पास 200 रूम्स हैं विच इज n, यानी n इज इक्वल टू 200 रूम्स हैं और मुझे एक स्टूडेंट को ढूंढना है, तो द वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू n। बेस्ट इज इक्वल टू 1 एंड वर्स्ट इज इक्वल टू n। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? n। So that is the 3 types of complexities of an algorithm. So let's move further. Okay, the next brief topic of discussion is the time-space trade-off. What is time-space trade-off? जब हम लोग कोई भी एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं या हम ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग जो एल्गोरिथम्स हैं प्रॉब्लम्स के लिए उनको उठाते हैं। मैं फिर से दोबारा से ले रहा हूं, जैसे सर्च को ले लेते हैं। तो फॉर गिवन सर्चिंग एल्गोरिथम्स, हर एल्गोरिथम की 2 चीजें डिफाइंड होती हैं। एक द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक, टाइम इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस और स्टेप्स, और दूसरा है कि वो एल्गोरिथम कितनी स्पेस लेती है। तो हमें फॉर अ गिवन सेट ऑफ एल्गोरिथम्स, हमें दोनों के लिए द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स और स्पेस गिवन हमें दिया होता है। तो व्हाट इज द टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ? अब हो क्या रहा है कि माय constraint is time. I want that my algorithm should take lesser time. And what about space? The person says, I have enough space. I can compromise on the space, but I want you to reduce the time. So this is the time space trade-off. आप दोनों पैरामीटर्स को एक साथ इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। You can only improve either time or either space. लेकिन इन दोनों में से किसी भी एक को you can say improve करने के लिए दूसरे को compromise करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग टर्म जो यूज करते हैं that is called the trade-off. Trade-off means to improve one parameter you have to compromise on second parameter. मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं and that example is called swapping of 2 numbers. अगर हमारे पास a is equals to 10 है और b is equals to 20 है, अब हम
इसके दो अलग अलग कोड्स देखेंगे, हाउ वी कैन स्वैप दीज टू नंबर्स। एक तरीका ये है कि मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेता हूं temp. नाउ temp इज इक्वल टू a, ओके, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू temp. तो ये क्या हुआ, आई हैव स्वैप्ड द टू नंबर्स। a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 20। व्हेन आई से temp इज इक्वल टू a, तो temp की वैल्यू कितनी हो गई 10। नेक्स्ट लाइन में लिखा है मैंने a इज इक्वल टू b, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 20 एंड b इज इक्वल टू temp, दैट मींस b की वैल्यू हो गई 10। दैट मींस टू नंबर्स हैव बीन स्वैप्ड। लेकिन इसमें स्पेस कितनी लगी मुझे, 3 वेरिएबल्स। सो टोटल स्पेस टेकन इज 3 वेरिएबल्स। अब हम इसका दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। a इज इक्वल टू a प्लस b, b is equal to a minus b and a is equals to a minus b. अब हम चेक करेंगे कि क्या दोनों नंबर स्वैप हो गए हैं या नहीं हो गए। तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। द फर्स्ट लाइन इज a is equals to a plus b, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो b की वैल्यू सेम है 20। नेक्स्ट इज b is equals to a minus b, तो कर दीजिए 30 minus 20, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 10। And the last line is a is equals to a minus b, so that means a becomes 20. 30 minus 10 is 20, यानी ये दोनों नंबर स्वैप हो गए। तो what is the space complexity of the second algorithm is कि हमने इसमें 2 वेरिएबल्स यूज किए, हमने थर्ड वेरिएबल यूज नहीं किया। तो इन 2 एल्गोरिथम्स में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसकी बेटर है, सेकंड एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है। क्या टाइम भी बेटर है, दैट इज नो। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिथम में 3 ऑपरेशंस यूज हुए हैं एंड दे 3 आर असाइनमेंट ऑपरेशंस, लेकिन राइट हैंड साइड वाली में 6 ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं, 1 प्लस 2 माइनस और 3 असाइनमेंट ऑपरेशंस। So that means the time taken by the second algorithm is more. So the first algorithm is better in terms of time and the second algorithm is better in terms of space. अब आपको कौन सा यूज करना है, that will depend upon the system that you are designing. उसकी requirement time है या उसकी requirement space है, जो भी है आप उस हिसाब से अपनी algorithm को डिजाइन कर सकते हैं। So the next topic is how can we represent an algorithm. हम algorithm की representation कैसे करते हैं? How do we represent the complexity of an algorithm? The algorithm can be represented in terms of asymptomatic analysis or asymptomatic notations. So what is an asymptomatic analysis of an algorithm? It refers to defining the mathematical foundations or framings of its runtime performance. क्या कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन चीजों के? The mathematical foundations or framing, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले n को दिमाग में रखिए। What is n? N is the size of input. ये आप राइट हैंड साइड पर एक ग्राफ देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग x एक्सिस को n मानकर चलते हैं और y को हम लोग आपकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी मान के चलते हैं। देखिए n बढ़ रहा है, यानी आपकी एल्गोरिथम का इनपुट का साइज बढ़ रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ रही है। कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सेम टू सेम, n इतना बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। 1 मींस नो चेंज इन द कॉम्प्लेक्सिटी, चाहे जितनी मर्जी आपकी इनपुट साइज बढ़ जाए। लीनियर कुछ इस तरह से होती है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जितनी मेरा साइज बढ़ रहा है उतनी ही मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। कुछ n स्क्वायर हो सकता है इस तरह से, और
एक आपका एक्सपोनेंशियल हो सकता है। इस तरह से एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि बहुत तेजी से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। सो दीज आर बेसिकली द मैथमेटिकल बाउंडेशंस, पहले से प्री डिफाइंड है। क्या आपकी कांस्टेंट है, क्या n है, क्या log ऑफ n है, क्या सिंपली लेट्स से n स्क्वायर है, या आपकी एक्सपोनेंशियल है 2 पावर n है, किस बाउंडेशन के अंदर आपका आता है। तो हम लोग हमारी किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को यूजिंग दीज मैथमेटिकल बाउंडेशंस और फ्रेमिंग ही रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द असिम्प्टोमेटिक एनालिसिस। ठीक है, ये 3 तरह का होता है, दैट वी विल सी। हम लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। तो बेसिकली 3 केसेस हैं क्या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। वो 3 केसेस हैं कि व्हाट इज द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माय एल्गोरिथम, व्हाट इज द एवरेज केस एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माय एल्गोरिथम। यानी हम लोग एक ही एल्गोरिथम को जब मैथमेटिकल बाउंडेशन में फिट करेंगे तो हम लोग उस एल्गोरिथम को 3 केसेस में फिट कर सकते हैं। एक ये है कि what is the worst time that my algorithm will take, what is the best time my algorithm will take, and what is the average time जो मेरी algorithm लेगी। तो ये बाउंड आता कहां से है? The asymptomatic analysis is input bound। समझ गए बात को? अगर आपकी एल्गोरिथम को इनपुट ही नहीं आ रहा है और वो बस एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। जब इनपुट ही नहीं है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इट इज ऑब्वियसली ऑलवेज गोइंग टू टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपकी एल्गोरिथम को इनपुट आ रहा है, तो इनपुट कई बार कम आएगा या कई बार ज्यादा आएगा, तो दैट नेचुरली मीन्स कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनपुट के ऊपर। ठीक है, सो असिम्प्टोमेटिक एनालिसिस इज इनपुट बाउंड। इसका मतलब क्या है? इफ देयर इज नो इनपुट टू द एल्गोरिथम, it will take constant time. Other than that, input, all other factors are considered constant. लेकिन हम मानते हैं कि हमारी एल्गोरिथम को इनपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो इनपुट का साइज कितना है, that will decide the amount of complexity we have. And what we want is that we want कि हमारी complexity minimum to minimum। So for example, the running time operation is computed in terms of Fn. तो हम लोग represent कैसे करते हैं the time complexity or the running time of any algorithm is in terms of Fn. And maybe for another expression, it is computed as Gn square. That means इस complexity, इस algorithm की complexity कितनी है n और इसकी कितनी है n square. तो which is better? n is better than n square। हमें मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना है। the amount of time it takes should be less। okay, what is n? वो मैं फिर से एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं। n is the amount of time it takes। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह की नोटेशंस हैं जो हम यूज करते हैं। one is called big O notation, one is called omega notation, and one is called theta notation। और इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? बिग ओ नोटेशन। व्हाई द बिग ओ नोटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन? बिकॉज दिस इज द नोटेशन व्हिच एक्सप्रेसेस द कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ द वर्स्ट केस। मतलब आपकी एल्गोरिथम वर्स्ट टू वर्स्ट फॉर एनी गिवन एन इनपुट कितना टाइम लेगी, दैट इज कॉल्ड द बिग ओ नोटेशन। फॉर्मली इसको डिफाइन कर देते हैं, इट इज गिवन इन हियर। The big O notation is the formal way to express the upper bound of an algorithm's running time। Upper bound means maximum यहां तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। और वो क्या होगा maximum upper bound? That will be the mathematical boundation जो मैंने आपको बताया था, n, 2n, n square, constant, log of n, n log n, जो भी है। It measures the worst case time complexity or the longest amount of time an algorithm can possibly take to complete।
So this is it. You can see here that f of n represents the complexity of my algorithm. ठीक है, f of n is the complexity of my algorithm and g of n is some asymptomatic mathematical notation. जैसे मैंने इसी ग्राफ के ऊपर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं that g of n ये भी हो सकता है which is constant, g of n एक ये भी हो सकता है, g of n for 2 square ये भी हो सकता है, और एक्सपोनेंशियल के लिए शायद इस तरह से भी हो सकता है. And this is the complexity of my algorithm. अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना हो इन टर्म्स ऑफ ओ एन, तो मैं इन सभी जीएन में से जो दिए हैं कौन से जीएन को कंसिडर करूंगा, ये वाले जीएन को, बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस जीएन इज ग्रेटर देन एफ एन, वन थिंग. लेकिन अब इसकी और इसकी ये तीनों भी तो ग्रेटर है एफ एन से, तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्यों लिया, this one. The reason is that this is greater than fn and closest to fn. इसको हम लोग बोलते हैं टाइटर बाउंड. इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटर बाउंड. द बाउंड शुड बी टाइट. इसका मतलब ये नहीं है कि fn के ऊपर लेना है तो I can take anything. I have to take the gn which is closest to fn. Okay, so what is big O notation? Big O notation is the worst case time complexity of any algorithm fn such that there exists some gn and fn should be less than equal to c into gn for on n greater than n0. Now what is the meaning of n greater than n0? देखिए, what is this representing? This is representing the value of n. n बढ़ता जा रहा है. ओके, अब आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को देखिए कि यहां तक n0, जब तक n की वैल्यू n0 या n0 से कम है तो दिस डज नॉट स्टैंड फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ n. हो सकता है कि fn की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो gn से ज्यादा हो, कहीं पर gn की कम है, कहीं पर gn की ज्यादा है. लेकिन जैसे ही n की वैल्यू n0 से बड़ी हो जाती है, then it is very clear that g of n is always going to be greater than f of n. लेकिन ये इस यहां तक ट्रू नहीं है, यहां तक ट्रू नहीं है. तो that means what is the big O notation? Big O notation is the you can say gn, यानी gn is the complexity of this big O representation, but it is only true when the value of n is greater than n0. Okay, I am sure you have done this before because when I joined your classes, this lecture was taken by your previous teacher, so they must have discussed this thing, but I repeat this thing. What is the definition of big O notation? Big O notation means that the complexity of your algorithm should be less than equal to any mathematical asymptomatic notation which is greater than your fn for any constant value c. That means c into gn, and n should be greater than n0. If all these three conditions hold true, that means the big O complexity of your algorithm is equal to g of n. Okay, तो एक चीज का जैसा मैंने कहा ध्यान रखना है कि और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं जो ग्रेटर होंगी, लेकिन हमने सिर्फ उसको कंसीडर करना है विच इज क्लोजेस्ट टू fn. नेक्स्ट, दूसरी भी नोटेशंस एक बार देख लेते हैं. दूसरी नोटेशंस को भी एक बार देख लेते हैं. सो दिस इज योर ओमेगा नोटेशन. ओमेगा नोटेशन में देखिए दिस इज gn इज लेस देन fn, यानी कम टाइम लेगा. कम टाइम का मतलब क्या है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, और हमें बेस्ट से कोई लेना देना नहीं, हमें वर्स्ट से ही लेना है, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. व्हाट इज द ओमेगा नोटेशन?
Omega notation represents the lower bound. That means the minimum time that will be taken by your algorithm. And what is the last one? The last one is your theta notation. Theta notation represents both the upper bound and the lower bound. That means your algorithm will not perform worse than a certain parameter and not best than the certain parameter. That is called the theta notation. तो इसमें हमें consider किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ big O को, because it is representing the worst case. With this we come to the end of your lecture. Thank you for attending the same.